ہزاروں سالہ تہذیبی روایات کی امین سندھی دھرتی کے یوم ثقافت پر بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی وزراء اور اہم شخصیات کے پیغامات۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سندھی ثقافت پاکستان کی متنوع اور رنگین ثقافتی وراثت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سندھی ثقافت کا دن ہر سو خوشیوں کی بہار۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں مبارکباد دی۔ کہا کہ یہ دن وادی مہران کی بھرپور ثقافتی ورثہ، شاندار روایت اور لازوال اقدار کا مظہر ہے۔ سندھ صوفی بزرگوں کی سرزمین ہے جو صدیوں سے امن، بقائے، باہمی اور محبت کا روشنی کا مینار رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ کی پہچان امن، محبت اور بھائی چارہ ہے۔ مہمان نوازی سندھ کی اٹوٹ روایت ہے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سردار محمد بخش مہر اور جام خان شورو نے اپنے الگ الگ پیغامات میں مبارکباد دی اور کہا کہ سندھی اجرک، ٹوپی، ادب، موسیقی اور لوک فنون ہماری گہری تہذیب اور پرامن بقائے باہمی کی علامت ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ انڈس تہذیب پاکستان کی تاریخ اور تمدن کا ایک اہم حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ انڈس سویلائزیشن ارض پاکستان کا سر کا تاج ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھی ثقافت کے رنگ کراچی والوں کے سنگ۔ سینٹرل پولیس آفس میں پروقار تقریب آئی جی سندھ غلام نبی میمن بولے، امن قائم کرنے میں پولیس کا کردار اہم ہے۔ سندھ دھرتی نے مہمان نوازی کا شعور اجاگر کیا۔ تقریب میں ایس ایس پیز اور ڈی آئی جیز کی بھی شرکت۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے اجرک اور ٹوپی کو تاریخی ثقافت قرار دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسین کی اس رپورٹ میں۔ روشنیوں کے شہر میں سندھی ثقافت کا جشن، ہر سو خوشیاں، ہر سو مسکراہٹیں۔ سندھ پولیس نے بھی اس دن کو منانے کے لیے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں رنگا رنگ محفل سجائی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ سندھی کلچر ڈے کا اصل پیغام امن، برداشت اور مہمان نوازی کو فروغ دینا ہے۔ آج کا دن ہم نے سیلیبریٹ کیا سندھ کلچر ڈے، اور سندھ کا آپ کو پتہ ہے کہ کلچر ریچ ہے امن امان کے ریفرنس سے، ٹالرنس کے ریفرنس سے، اور یہاں پہ لوگ مہمان نوازی کے ریفرنس سے۔ تو ہم ایز این پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ امن امان ایک ایسا صوبہ ہے جو پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو بولے، سندھی کلچر ڈے منا بھی رہے ہیں اور ڈیوٹی بھی سر انجام دی جا رہی ہے۔ یہاں کے کلچر کے نہ صرف ایلیمنٹس، چاہے وہ ٹوپی ہو، اجرک ہو، بہت ہی قدیمی ہے۔ موہنجودڑو میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو پریسٹ کنگ ہے اس کو بھی ایک جو فیبرک بنی ہوئی ہے اس پہ وہی پیٹرنز ہیں جو آج کل ہم اجرک میں پہنتے ہیں۔ تقریب میں شریک افسران کا کہنا تھا کہ سندھ امن کا گہوارہ ہے۔ سندھی ٹوپی اور اجرک امن کی پہچان ہے۔ سندھی کلچر ڈے، اجرک ٹوپی ڈے ہم ہر سال بڑے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک تجدید عہد کرتے ہیں اور ہزاروں سال پرانی جو سندھ کی ثقافت ہے، سویلائزیشن ہے، اس کو چیریش کرتے ہیں۔ نہ صرف سندھ کے اندر، سندھ سے باہر، پاکستان سے باہر جو ہمارے سندھی بولنے والے، سندھی ثقافت سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ یہ سندھ کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے جو کہ لاسٹ ایئر سے آئی جی آفس میں تقریب ہوتی ہے جس میں افسران آتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی روایت، اور ہمیں سندھ پولیس کو بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے سندھ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ بہت ہی پرانی سویلائزیشن ہے اینڈ اٹس اے ویری گڈ ٹریڈیشن کہ ہم لوگوں نے آفس میں بھی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ڈان ٹپٹ کے لیے آفس میں بہت دفعہ آتے ہیں، آج سارے جو ہیں وہ اچھے ماحول میں، خوشگوار میں امن کا پیغام دے کے اور سندھی کلچر ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر سندھی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین نوید کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔ بڑی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی ویو پر آئل ریفائنری کی متاثرہ پائپ لائن کی مرمت کر دی گئی۔ لائن میں لیکیج کے باعث فرنس آئل سڑک پر پھیل گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق سی ویو پر روڈ پاکستان ریفائنری کی پائپ لائن میں لیکیج صبح 6 بجے ہوئی۔ تیل سروس روڈ اور قریبی رہائشی پروجیکٹ میں بھی داخل ہو گیا، تاہم مٹی کی مدد سے تیل کے پھیلاؤ کو روکا گیا۔ آئل ریفائنری کے عملے نے پائپ لائن کی مرمت کر دی۔ ریفائنری حکام کا کہنا ہے کہ آئل بہنے کی اطلاع پر تیل کی پمپنگ رکوا دی گئی تھی۔ پاکستان ریفائنری کے ایم ڈی زاہد میر کے مطابق سی ویو پر روڈ ریفائنری لیکیج کی مرمت کے لیے ٹیم کو بروقت روانہ کیا گیا۔ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ڈمپر کی زد میں آ کر جاں بحق پروفیسر اور ان کی اہلیہ کے ورثاء غم سے نڈال۔ متوفی پروفیسر صلاح الدین کی بہنوئی ذیشان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ہیوی ٹریفک کے حوالے سے فوری ایکشن لے۔ مزید تفصیلات مبشر حسین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
साइड सुपर हाईवे हादसे में जा बहक मियां बीवी नए घर के मकीन ना बन सके। दोनों मियां बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि खूनी डंपर ने कुचल डाला। दोनों मियां बीवी स्कीम 33 से अजीजाबाद अपने नए घर मुंतकली के लिए जा रहे थे। गुलजार हिजरी स्कीम 33 से स्टेट बैंक सोसाइटी से अपना सामान शिफ्ट करवा रहे थे अजीज़ाबाद के लिए। तो आगे ट्रक में सामान था और पीछे ये मेरे कज़न और उनकी मिसेस दोनों साथ साथ थे, तो पीछे से किसी नामालूम डंपर ने इनको हिट किया है। जा बहक अफराद के करीबी अजीज जिशान के मुताबिक तारिक सलाउद्दीन अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और मुस्बत किरदार के हामिल शख्सियत थे। मुतवफ़्फ़ी के 2 बेटे और बेटी का बाप था। तारिक भाई हमारे बहुत अच्छे मोहल्लेदार थे। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे फिज़िक्स के। बहुत जेंटलमैन आदमी थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। वो इस तरह की मौत डिज़र्व नहीं करते थे। ऐसी मौत वो डिज़र्व नहीं करते थे जो उनको यहाँ के शहरियों वालों ने दी। जो शहर की हुकूमतें हमारी, उनको चाहिए ये टूटे फूटे रोड, ये जो डंपरों को आज़ादी दी हुई है, ट्रकों को आज़ादी दी हुई है, इनको कंट्रोल करें। हादसे के फौरन बाद पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर थाना सच्चल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर हादसे के बाद फौरन फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुतवफ़्फ़ी की तदफीन पीर को सकियसन कब्रिस्तान में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। रवा माह में मजमूई तौर पर 15 से ज़ायद अफराद डंपर्स की टक्कर से जा बहक हो चुके हैं। कैमरामैन नवीद के साथ मुबशिर हुसैन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सड़कों के साथ पुल भी तबाहाली का शिकार। कुरंगी जाम सादिक पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जोही के बायस नशा करने वाले पुल की हिफाजती दीवार का सारा सरिया ले उड़े। शहरी कहते हैं मरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइट्स का न होना भी वबाल जान बन गया। मज़ीद तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सड़कों के साथ पुलों की भी हालत अबतर होने लगी। जाम सादिक पुल नशे के आदी अफराद की भेंट चढ़ गया। पुल की हिफाजती दीवार में लगा सरिया नशा करने वालों ने चोरी कर लिया। डिफेंस से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाले पुल की हालत अबतर। शहरी कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स न होने के बायस मुश्किलात का सामना है। ना इधर पोलों में लाइट जल रही होती है, इधर इतना अंधेरा हो रहा था रोड पे कि जाना ही मुश्किल हो जाता है। स्लो जाना पड़ता है, लेकिन स्लो जाओ तो खतरा है इधर, क्योंकि एक डकैत कहीं पर भी घूम रहे होते हैं, कहीं पर भी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ी सी ना इधर सहूलत मिलनी चाहिए हमें आवाम को। शहरियों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि जाम सादिक समेत दीगर पुलों की मुरम्मत की जाए, साथ ही सरिया चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा फरहान खान, सिटी 21। बड़ी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम के बाद शेड्यूल की गई ऑनलाइन ई कचहरी मुलतवी कर दी गई। डीजी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ज़ेर सदारत ई कचहरी 3 दिसंबर को होना थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ई कचहरी की नई तारीख के ऐलान के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एयरपोर्ट्स के हवाले से मसाइल पर सारिफीन शिकायत दर्ज कराते हैं। हुकूमत बेखबर, इंतज़ामिया बेहिस, मेयर बहर और बल्दिया टाउन गंदगी के ढेर में तब्दील। 8 बरस गुजरने के बावजूद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफाई का निज़ाम दुरुस्त ना कर सका। जगह जगह कचरे के ढेर और इनसे उठता ताफुन इलाका मकीनों की जान और माल और कारोबार को नुकसान पहुँचा रहा है। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान कहते हैं कराची शहर का कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। कराची के वोट पर डाका डाला गया। टैंकर्स डंपर माफिया को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है जो शहरियों में मौत बांट रही है। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले फॉर्म 47 की शक्ल में क़यादत कराची पर मुसल्लत है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो गया। शहर के ताजिर माफिया सिस्टम से परेशान हैं। जो माशी सूरत हाल है, लेकिन आपको इदराक ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो खिदमत कर रही है, आपको तो इदराक ही नहीं है इन सारी चीजों का। और वो लोग कि जिनको इस शहर पर मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 की शक्ल में, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट लेने वाले जाली तरीके से, उनको भी इस चीज का इदराक नहीं। मुनिम जफर का कहना था कि टैंकर्स डंपर्स शहरियों की अमवात का सबब बन रहे हैं। जामियात की फीस में तफरीक कराची के तलबा के साथ ज्यादती है। तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ा जाए। ये कैसा दोहरा मेयार है कि एक ही सूबा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक ही, लेकिन फीसों में 4 गुना 5 गुना। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 60,000 रुपए कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अदा करे और सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 18,500 रुपए। होना यह चाहिए कि जिस तरह सिंध यूनिवर्सिटीज की फीसें हैं, कम से कम इतनी फीसें हों जो कराची यूनिवर्सिटी के तलबा अदा कर रहे हों। हमने पहले भी ये बात कही थी
कि तालीमी इदारों पर शब खून मारना छोड़ दीजिए। मोनिम जफर खान का ये भी कहना था कि MD कैट के पेपर लीक करने वालों को बेनकाब किया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहरियों पर महंगाई का एक और वार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को बिलाजवाज करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफे से 252 रुपए 10 पैसे हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा 258 रुपए 43 पैसे पर जा पहुंचा। लाइट डीजल ऑयल 48 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे कमी की गई। शहरियों ने पेट्रोल की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बोले पेट्रोल की कीमत कम से कम होनी चाहिए। आमदनी का बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है और क्या करें, पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा चलाएं, बहुत मुश्किलात उठानी पड़ती है। पेट्रोल महंगे होने से आमदनी कम होती है सर। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि पेट्रोल कम किया जाए। सर पेट्रोल तकरीबन 150-60 तक होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जोना धोबी घाट में 1 साल से गैस के मसाइल, इलाका मकीनों की जिंदगी अचीरन हो गई। हज़ारों रुपए के गैस के बिलों की अदायगी के बावजूद LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। लियारी धोबी घाट के मकीन 1 साल से गैस मसाइल झेल रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी इस हद तक वाक़ई हो जाती है कि मिनटों में बनने वाले खाने घंटों में तैयार होते हैं। अक्सर गैस गायब होने से नाश्ता खाना या तो बाजार से लाना पड़ता है या LPG सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाइस महंगाई के इस दौर में अखराजात बढ़ गए हैं। जब मौसम सही हुआ है और ये गैस जाना शुरू हो गया, आज भी जरा सा आ रहा है घर में हमारे। हम चाय नहीं पका सकते घर में। इस हुकूमत पे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो यहाँ गरीब लोग रहते हैं, कोई अमीर नहीं रहते। यहाँ सिलेंडर भी कितना महंगा पड़ जाता है। सुबह देखो चाय पकाने उठो तो गैस ही नहीं है, रात को खाना गर्म करने देखो तो गैस ही नहीं है। बच्चे स्कूल जाते ऐसे चले जाते हैं। यही है क्या है ना, देख आता ही नहीं है गैस बिल्कुल। और 9 बजे रात को है ना बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। और सुबह को 6 बजे खुलता है, 6 बजे खुलता है। मकीनों ने शिकवा किया कि हजारों रुपए बिलों की अदायगी करके अब मायूस हो चुके हैं। गैस तो आता नहीं है और 30,000 रुपये भरे हमने। अब कम कराने गए नुमाइश पे तो बोलते हैं लिखा हुआ है ये तो भाई भरना पड़ेगा तुम्हें। तो हवा भी नहीं है उसमें, गैस भी नहीं है, तो बिल कैसे भरें बताओ जब गैस ही नहीं है। लोग सिलेंडर बनाते हैं तो भाई 2 दिन चलता है हमारा। खाली सालन पकता है, बाहर से रोटी आती है और सुबह का भी चाय बनाते हैं सिलेंडर पे। गैस तो आता ही नहीं है, बहुत कम आ रहा है। जुम्मे वाले दिन तो आता ही नहीं है। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि ओल्ड सिटी एरिया के इलाके जूना धोबी घाट में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। क्लिफ्टन का वीकेंड बचत बाजार शहरियों के लिए सहूलत का सबब बन गया। बाजार में अशियाई ज़रूरिया मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है बाजार में तमाम अशिया के दाम मुनासिब हैं। हुई महंगाई बचत बाजार ढाल बन गए। क्लिफ्टन का वीकेंड बचत बाजार आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करने का जरिया। बाजार में इस्तेमाल शुदा अशिया, जूते, कपड़े, कंबल, बर्तन के अलावा खाने पीने की अशिया सस्ती तरीन दस्तयाब। शहरियों का कहना था कि मार्केट से कम पैसों में यहाँ चीजें मिल जाती हैं। गरीब आवाम के लिए बाजार अच्छा है। देखें ये जो है रेटों का जो मामला है ना, ये 1000 रुपये का बाहर हम सेल करवाते हैं और यहाँ ये बचत बाजार है हमारा, इसमें जो है हम 500 रुपये का चला रहे हैं। इधर 40-30% फ़र्क होता है और इधर ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट चीज़ें होती हैं, कुछ 0 मीटर चीज़ें भी मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल रेट में दिया जाता है। क्लिफ्टन का बाजार शहर के दीगर इलाकों के मकीनों के लिए भी महंगाई से रिलीफ का जरिया बना हुआ है। शहर कायद का मौसम तब्दील होने लगा। कराची के बासियों ने छुट्टी के रोज़ मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख कर लिया। छुट्टी का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरी साहिल पर पहुंचे। कोई घुड़सवारी करने में मसरूफ तो कोई समंदरी की लहरों से सुकून हासिल करता रहा। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देख। शहरी बोले पूरे हफ्ते तफरीह के लिए वक्त नहीं मिलता, इसलिए छुट्टी के रोज सुबह ही आ गए। हम लोग अभी सुबह में आए थे और बस ये क्रिकेट वगैरह खेल के फिर घर चले जाएंगे। तो ये बताइएगा, सबको लेकर आए हैं ये सब आपके बच्चे हैं? आज संडे होता है, छुट्टी होती है,
تو اس لیے ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے جی بالکل ہوتا ہے، لیکن مصروفیت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انٹرٹین کے لیے بچوں کو اور فیملی کے ساتھ مائنڈ فریش کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے. اس سے بھی تھوڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ اپنا بریک فاسٹ وغیرہ ناشتہ وغیرہ سب لے کر آتے ہیں، ساتھ مل کے کھانے کا اچھا ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. شہر قائد کا موسم چاہے جیسا ہو، شہری سیر کے لیے گھروں سے ضرور نکلتے ہیں. کیمرہ مین تابش کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21.